Hello and welcome, everybody. Good morning to you. Thanks so much for joining on a Sunday morning on this very important webinar that we're doing today on the occasion of World Organ Donation Day that just went by on the 13th. We are today proud to be collaborating with Mohan Foundation, one of the country's leading and most reputed organizations working in the area of organ donation. And at NephroPlus, while we are a chain of dialysis centers that's present in 4 countries, we strongly believe that a kidney transplant offers the best outcomes to any patient with kidney failure. And we encourage everybody, all our patients, all our guests, and anybody on dialysis or diagnosed with end-stage kidney failure to consider seriously a transplant and talk to their nephrologist, talk to their doctors about the benefits of a kidney transplant and how suitable they are and what they can do to get a kidney transplant as soon as possible. Because I personally, being on dialysis, I strongly believe that a kidney transplant is the best possible treatment that anybody with kidney failure can uh, get. So getting started with the introductions, we have two very brave, very courageous individuals. The first is Jaya Jairam, who's the project director of Mohan Foundation in Mumbai. She has an engineering degree, and after her graduation, she's been working in the corporate sector. At a young age of 33 years, she was diagnosed with end stage kidney failure. The reasons were unknown. For a lot of people, they're unknown in India. She was blessed with a second chance when her mother donated one of her kidneys in 2010. This experience, this very personal experience, helped Jaya understand the trauma of those waiting for an organ and the dilemma of taking an organ from a loved one. Her gratitude fueled her drive for promoting and enabling organ donation in India, and she founded Mohan Foundation's Mumbai Center in 2016. The foundation has since entered into a partnership with the Maharashtra government for augmenting deceased donation in government hospitals, through which they have saved and enhanced lives through awareness, counseling, and facilitating for organ and tissue donations. Drawing from her own experiences, she felt the need for a strong patient support group that would not just provide a platform for exchange of first-hand learnings and experiences, but also be the unified voice of the patient community, representing their challenges and needs. Triumph, which is for the short form for Transplant Recipients of India and Organ Failure Patients, a movement to provide hope, was launched by Mohan Foundation in 2020 under her leadership. It is committed to transforming the quality of life of the patients through education, support, awareness, and advocacy. Thanks so much, Jaya, for agreeing to do this webinar, and I hand over to you. Thank you so much, Kamal. Entirely my privilege and honor to be here with you all. So let me start off by sharing my presentation here. Yeah, is this visible, Kamal? Yes, it is, but you should just, yeah, now it's perfect. Thank you. Okay. Okay, so thank you so much for having me here. And today we're going to discuss how kidney transplant can actually be a gift of life. I will be sharing my own personal experience and how liberating it has been after getting a kidney transplant. I represent Mohan Foundation. Mohan is an acronym for Multi Organ Harvesting Aid Network. It's a 27-year-old NGO that has been promoting organ donation, ethical, altruistic organ donation all across India. That is our helpline number. Moving on. So, friends, I'm going to talk थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात करती हूँ. I hope that is okay with everyone. So, अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं और if you're planning a kidney transplant और बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे आपके मन में, कंफ्यूजन होगा कि क्या हम सही चीज कर रहे हैं, इसमें क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिंदगी कैसे बदलेगी, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे, बहुत से गैर समझ मिसकंसेप्शंस भी है ट्रांसप्लांट के बारे में. तो आज ये सेशन के जरिए आई एम गोइंग टू ट्राई कि हम लोग ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये डिस्कस करें. And feel free to ask questions at the end of it so that
सिर्फ मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपसे भी क्वेश्चंस आना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रांसप्लांट के बाद जिंदगी कैसे होती है इस पे एक आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल एन आइडिया। कौन डोनेट कर सकता है, इसमें प्रोसेस क्या है, और अगर पैसा, ये जो ट्रांसप्लांट्स दे आर नॉट चीप, दे आर एक्सपेंसिव, एंड ये पैसे कैसे रेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज, हाउ इज लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट। मैं मेरी खुद की कहानी आपके साथ शेयर करूंगी, बट उससे पहले इतना बोलना चाहती हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ये ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाता है, और ट्रांसप्लांट के बाद एक नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। नियर नॉर्मल ये क्यों बोल रही हूँ, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, बट लाइफ इज सो मच बेटर आफ्टर अ ट्रांसप्लांट। द फैक्ट इज दैट किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये एकमात्र ट्रीटमेंट है जिससे एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सकता है सीकेडी पेशेंट्स को। okay? जो क्रॉनिक किडनी फेलियर से पीड़ित हैं, तो इनको बस ये एकमात्र ऑप्शन है जिससे हम वापस एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सो दिस इज हाउ लिबरेटिंग अ किडनी ट्रांसप्लांट इज, एंड लेट अस जस्ट डिस्कस अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट द आउटकम्स। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि किडनी ट्रांसप्लांट का आउटकम बहुत अच्छा है। पहले जैसे मतलब 15-20 साल पहले जब किडनी ट्रांसप्लांट एक नई चीज थी, इतना उतने एडवांसमेंट नहीं था, बट अभी इम्यूनो सप्रेशन मेडिकेशंस आर बेटर, ज्यादा एडवांस्ड है। इससे ट्रांसप्लांट के बाद की जो लाइफ है ये प्रोलॉन्ग हो चुका है। ज्यादा लोग ट्रांसप्लांट के बाद कोई 20 साल प्लस, कोई 15 साल प्लस, तो ऐसे और अच्छा चल रहा है सबका किडनी, ट्रांसप्लांटेड किडनी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये ट्रांसप्लांट का कोई लाइफ नहीं होता। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 10 साल के बाद ही वो 10 साल ही चलेगा या 4 साल ही चलेगा। ये ऐसे जो आपके दिमाग में है, ये गलत बात है। हमें, जो हम अपने आप को जितने अच्छी तरीके से संभालते हैं उतना लंबा चलेगा। अपने हाथ में जो है ये हमें कोशिश करना है, बाकी भगवान के हाथ में है। बट तकनीकी और ये जो मेडिकल एडवांसमेंट है ये काफी आगे बढ़ चुके हैं, एंड थिंग्स आर फार बेटर नाउ एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज मे बी 20-25 years ago। काफी लोग ये भी डरते हैं कि जो लिविंग डोनर होता है एंड जो कैडवरिक डोनर, या जो मृत्यु पश्चात जो अंगदान करते हैं उसके जरिए जो किडनी मिलता है, इसमें कुछ फर्क है क्या? लेकिन अभी आज के तारीख में जो आउटकम है, आउटकम मतलब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और वो ट्रांसप्लांट का जो क्वालिटी है, ये काफी सिमिलर है दोनों केस में, तो इसलिए हमें ये डरने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन भी जो है ये मिनिमल है। पहले 3 हफ्ते 4 हफ्ते ऐसे वगैरह हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था ट्रांसप्लांट के बाद, सर्जरी के दौरान। बट अभी आज के टाइम हॉस्पिटलाइजेशन भी मिनिमल हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल्स कोशिश करते हैं कि जो रेसिपिएंट्स है इनको डिस्चार्ज कर दें। और जो मेडिकल टीम्स है, जो डॉक्टर्स है, ये काफी, इनको भी अभी एक्सपीरियंस हो चुका है। अभी इतने पैमाने में किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं कि उनको अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होता है तो भी उनको अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस है कि इसके साथ कैसे डील करें, और वो पेशेंट को मदद करते हैं टू गेट बैक ऑन ट्रैक। सो दिस इज हाउ द आउटकम इज। ये काफी अच्छा सिचुएशन हो चुका है अभी। तो ये जो अपने मन में डर होता है कि ट्रांसप्लांट ज्यादा टिकता नहीं, ये गलत बात है, ये एक गैर समझ है। सो मेरे ट्रांसप्लांट को 14 साल हो चुके हैं। आई लीड अ वेरी नॉर्मल लाइफ। लंबा आई रन छोटे छोटे मैराथन्स भागती हूँ, ऐसे नहीं कि हाफ मैराथन एंड ऑल दैट, बट यस 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर मैराथन्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। और कोशिश ये रहती है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं कि अंगदान जो है ये लोगों की जानें बचा सकती है। इट इज वेरी सेटिस्फाइंग लाइफ दैट आई लीड। थोड़ा आपके साथ एक समरी, ये सब जो है मैंने ट्रांसप्लांट के बाद किया हुआ है, जस्ट शेयरिंग माय पर्सनल ट्रैवल्स एक्सपीरियंसेस। ये सब चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और ये मैंने एक्चुअली बकेट लिस्ट किया था कि ट्रांसप्लांट के बाद ये सब चीजें मुझे करनी है, और वो एक एक मैं करते आई हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत अच्छा है लाइफ, लाइफ इज रियली गुड, वेरी लिबरेटिंग। आई वांट टू
this is my mother. She's the one who donated her kidney to me. तो अगर मैं मम्मी को इस फोरम में थैंक्स नहीं बोलूं तो it would really be amiss. तो इसलिए I just want to thank my mother who made it all possible for me. I thank her every minute, every second of the day. And touch wood, she gave birth to me twice. That's all I'll say. So कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, हाँ डेफिनेटली, बट ये समझ लीजिए क्या प्रिकॉशंस है करके। एक तो सिंपल चीजें हैं जैसे कि हैंड हाइजीन। ये तो अभी स्पेशली कोविड के बाद जो हाथ साफ करना, धोना, कहीं बाहर से आते हैं, लिफ्ट के बटन दबा दिए वगैरह, तो ये हैंड हाइजीन रखना बहुत ही जरूरी है। अगर पानी को एक्सेस नहीं है तो वो जो सैनिटाइजर आजकल हम लोग यूज करते हैं वो काम में आ सकता है। भीड़ में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो मास्क पहन लीजिए। अगर कोई घर में भी खांस रहा है, someone has cold, cough, please keep your safe distance from them. My doctor says you have to keep at least 7 feet distance from them. मास्क पहन लीजिए या उनको मास्क पहनने को बोलिएगा। मेडिसिन जो है ये हमारे दोस्त है। ट्रांसप्लांट के बाद ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हमें दिए जाते हैं, दीज आर आवर लाइफ लाइन। विदाउट दैट ये किडनी को बचाने में ये बहुत काम में आते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम इन्हें अपने दोस्त में सही वक्त में लें, सही समय पे लें, अच्छी तरीके से स्टॉकअप करें। कम से कम 2-3 महीने का स्टॉक हाथ में होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर गलती से भी मिस हो गया तो भी अपने डॉक्टर से तुरंत बात करें। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। केवल जो डॉक्टर ने लिख के दिया है वही केवल दवाइयां लेनी है। डॉक्टर को बिना पूछे कोई नई दवाइयां नहीं लेनी है, क्योंकि वो किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। पानी और खाना, ये जो है इसमें हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो दवाइयां खाते हैं उससे अपनी इम्यूनिटी थोड़ी कम की जाती है, ताकि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंच सके। ठीक? नहीं तो शरीर का ये एक रिएक्शन होता है कि हम जो भी एक ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स होते हैं उन्हें वो रिजेक्ट करने की कोशिश करता है नॉर्मली। इसलिए दवाइयां देके बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम की जाती है, ताकि वो उस ट्रांसप्लांटेड किडनी को रिजेक्ट ना करे। बट इसकी वजह से क्या होता है कि शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन जो है, वी आर प्रोन टू इन्फेक्शंस। इसलिए फूड, वाटर हाइजीन ये सब संभालें। खाना जो है ये कुक करके खाएं। अगर कच्चा खा घर पे अच्छे से वॉश करके खाएं, बाहर कोई भी चीज कच्चा नहीं खाएं। बाहर डेफिनेटली खा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में खा सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खा सकते हैं, लेकिन वहां पे भी कुक्ड फूड खाएं, कभी रॉ फूड नहीं खाएं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को फिट रखें। एक्सरसाइज, योगा, फिटनेस, ये जो भी आप फॉलो करते हो, आपकी इच्छा है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए। आप अपनी हॉबीज फॉलो कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स में ध्यान रखें कि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उससे कोई धक्का नहीं पहुंचे, मार नहीं पहुंचे। तो बाकी ये सारे, मतलब बैडमिंटन खेल सकते हैं, ये सब चीजें जो है, यू कैन डेफिनेटली प्ले टेबल टेनिस, वॉट एवर इज योर विश, यू कैन स्टार्ट परस्यूइंग इट वंस अगेन। बेसिकली आपको ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ इतनी नॉर्मल हो जाती है कि कई रेसिपिएंट्स जो है, किडनी रेसिपिएंट्स, मतलब जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, आगे जाके शादी भी कर लेते हैं, ट्रैवल करते हैं, कई कोई सी बन गए हैं, कोई आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर ट्रांसप्लांट प्रेगनेंसी हुआ है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू। ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है जिंदगी के, और उसे जीना बहुत जरूरी है। और ट्रांसप्लांट जो है ये हमें ये ऑफर करता है, ये इसका एक जरिया है। अब देखते हैं कि कौन डोनेट कर सकता है और इसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है। लिविंग डोनर एंड डिसीज डोनर, ये दो ऑप्शंस है। पहले लिविंग डोनर, मतलब जीते जागते जो किडनी दान में देते हैं, इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है एज पर दी लॉ, ये मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगी। उसके बाद हम लोग जो डिसीज्ड डोनर, यानी जो मृत्यु के बाद डोनेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर दी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, जो 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लिविंग डोनर की डेफिनेशंस है। दो कैटेगरीज बनाए हैं कानून के नियम से। एक है नियर रिलेटिव्स। नियर रिलेटिव्स यानी कि पेरेंट्स, बच्चे, भाई बहन,
दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब जो है, एंड हस्बैंड वाइफ ऑफ कोर्स, ये सब जो है, ये अपने जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है, ये डिफाइन किए गए हैं नियर रिलेटिव्स में। इनमें से अगर कोई दान करने को तैयार है, हमें किडनी की जरूरत है, और इनमें से कोई दान करने को तैयार है किडनी, तो प्रोसेस जो है ये रिलेटिवली फास्ट है, स्मूथ है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये रिकग्नाइज करती है कि अगर किसी के किडनीज फेल हो गए हैं और अगर कोई इमीडिएट रिलेटिव डोनेट करना चाहता है, ऑब्वियसली दैट इज बिकॉज उस व्यक्ति को देखा नहीं जा रहा है इनकी जो तकलीफ है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कमिंग अहेड एंड दे वांट टू डोनेट वन ऑफ देयर किडनीज। सो ये जो है, इसमें कोई पैसे की लेन देन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं होगा करके, इसलिए इसमें ऑफकोर्स थोड़े चेक्स एंड बैलेंसेस है, बट द प्रोसेस जो है इसका ये रिलेटिवली फास्टर है, सिंपल है। ये भी मैं थोड़ी देर नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी क्या प्रोसेस है। दूसरा कैटेगरी है अदर देन नियर रिलेटिव्स, मतलब ये जो ऊपर वाले कैटेगरी के अलावा बाकी सब जो है वो सब अदर देन नियर रिलेटिव्स, जैसे कि फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, या अपने मामा मामी, कजिन्स, ये सब जो है अदर देन नियर रिलेटिव्स में डेफिनेशन में आ जाते हैं। क्योंकि अम, अगर मुझे किडनी की जरूरत है और मैं आपसे मांगू मुझे एक किडनी आप दें, तो क्या आप देने को तैयार हो जाएंगे? बहुत रेयरली ना। तो अगर आप किसी को भी रैंडमली पूछेंगे तो क्या वो तैयार हो जाएंगे? नहीं। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ी डिसीजन है। तो it is not easy for somebody who doesn't know you so well to offer one of their kidneys, a part of their body to you. तो इसमें जो है अगर कोई तैयार है तो इसमें गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है कि इनका इरादा क्या है, कोई लेन देन तो नहीं है पैसे का, और मतलब कोई दबाव तो नहीं है। तो ये सब चीजें जो है इसके वजह से अगर अदर देन योर रिलेटिव्स डोनेट करना चाहता है तो उसमें ज्यादा जांच पड़ताल होती है, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। अब देखते हैं लिविंग डोनर कौन बन सकता है। somebody of health, someone should be health, that the donor should be healthy and of sound mind, मतलब mentally they should be capable of deciding कि हाँ मैं मेरे स्व इच्छा से डोनेट करना या करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। प्लस दे शुड बी एन एडल्ट 18 इयर्स। आजकल बहुत से लोग जो 17 प्लस है वो भी डोनेट करना चाहते हैं, तो वो लोग सुप्रीम को हाई कोर्ट तक जाते हैं और अप्रूवल्स लेते हैं, लेकिन कानून कहता है कि अगर ये पर्सन खुद के लिए डिसाइड करना चाहता है या चाहती है तो दे शुड बी एडल्ट्स हु शुड बी केपेबल ऑफ डिसाइडिंग फॉर देमसेल्व्स। लेस देन 18 इयर्स जनरली अलाउ नहीं करते हैं अनलेस देयर इज अ स्पेशल कोर्ट ऑर्डर और समथिंग लाइक दैट। ये जो किडनी डोनेशन जो है विदाउट एनी फोर्स होना चाहिए, किसी कोई दबाव नहीं होना चाहिए। सेड या अनसेड, अनसेड दबाव भी काफी बार फैमिलीज में होते हैं जिसमें वो मुंह खोल के बोलते नहीं है, लेकिन एक प्रेशर, एक गिल्ट के वजह से एक प्रेशर आ ही जाता है फैमिली मेंबर पे। तो ये सब चीजें जो नहीं होनी चाहिए और इसमें ये सब चेक किया जाता है। जो डोनर है, द डोनर मस्ट बी डोनेटिंग आउट ऑफ अफेक्शन एंड अटैचमेंट। There should be no expectation of money or anything cash or kind as well. And most important कि blood and tissue type must match. ये मैचिंग होना जरूरी है, नहीं तो वो किडनी एक्सेप्ट नहीं होगी बॉडी में। तो अगर ये सब क्राइटेरिया मैच होते हैं तो ऐसा व्यक्ति लिविंग डोनर हो सकते हैं। डॉक्टर्स भी काफी केयरफुली डोनर जो है इन्हें सिलेक्ट करते हैं विद इन द फैमिली। अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो क्या ये व्यक्ति सूटेबल है डोनेट करने के लिए, ये सब चेक करते हैं। इवैल्यूएशन किया जाता है, उनका हेड टू टो चेकअप किया जाता है कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है जिसके वजह से उनको आगे जाके तकलीफ होए। तो इसलिए ये सब चेकिंग किया जाता है ताकि एक अच्छे खासे हेल्दी व्यक्ति को आगे जाके तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये डोनर्स जो है ये जो ऐसे चुने जाते हैं कि वो जो एवरेज पॉपुलेशन है उनसे हेल्दी है, तंदुरुस्त है, उनमें कोई बीमारियां ऐसे नहीं है। और जो डोनर नेफ्रेक्टमी, मतलब जो किडनी का निकालने की जो सर्जरी है वो आजकल मिनिमली इन्वेजिव होने लगे हैं, मतलब ज्यादा ओपन सर्जरी नहीं होती, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होती है, जैसे कि लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक टेक्निक्स यूज करते हैं।
और किडनी निकालने में, तो इससे मिनिमल किया जाता है। तो इस वजह से डोनर जो है उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। हॉस्पिटलाइजेशन जो है ये कम होता है बिकॉज ऑफ दिस। अभी पहले जैसे मेरे मम्मी ने जब 14 साल पहले मुझे डोनेट किया था तो उनका पूरा सर्जरी, ओपन सर्जरी हुआ था, कट करके निकालना पड़ा था। लेकिन आजकल वैसे ज्यादातर नहीं होता, मिनिमली इन्वेजिव यानी लैप्रोस्कोपिक वगैरह यूज करते हैं। डोनर्स में भी अभी आप सोच रहे रहेंगे कि कोई तकलीफ तो नहीं होगी आगे जाके, लेकिन काफी स्टडीज हैं जिससे ये प्रूव किया गया है कि आगे जाके इनका जो डोनर्स में जो लॉन्ग टर्म आउटकम होता है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ स्पैन है उनका, मतलब जो उनका जीने का जो ड्यूरेशन है लाइफ का वो काफी नॉर्मल है, वो एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एंड उनको कोई नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा कोई एंड स्टेज रीनल फेलियर की चांसेस नहीं है, रिस्क नहीं है। जितना नॉर्मल पॉपुलेशन में है उतना ही उनमें भी रिस्क है। तो ये काफी स्टडीज हो चुकी है और प्रूव हो चुके हैं। अब लिविंग डोनर का प्रोसेस क्या है ना, अभी आप यू हैव समबडी इन द फैमिली हु इज विलिंग टू डोनेट, अ फैमिली मेंबर, तो उनका ब्लड ग्रुप, टिश्यू टाइप ये मैच किया जाता है, उनकी कंप्लीट मेडिकल चेकअप होती है कि भाई इनमें कोई तकलीफ तो नहीं है। उसके बाद ये सब तसल्ली होने के बाद आगे लीगल प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। इसके लिए आपके हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। डॉक्टर्स आपको ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स से कनेक्ट कर देंगे और ये कंप्लीटली आपको करेंगे, आपका मतलब दे विल कंप्लीटली हैंड होल्ड यू थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ लीगैलिटीज। एक इंटरव्यू होती है ऑथराइजेशन कमिटी के द्वारे। अगर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है तो हॉस्पिटल की खुद की ऑथराइजेशन कमिटी होती है जो इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करने का अगेन ये उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि कोई दबाव, प्रेशर, कोई मनी एक्सचेंज तो नहीं हो रहा, ये वो कंफर्म करते हैं। यदि इमीडिएट रिलेटिव नहीं है विद इन द फैमिली, अगर कोई डिस्टेंट रिलेटिव है तो शायद हॉस्पिटल अपने लेवल पे ऑथराइजेशन कमिटी इस पे डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं तो वो फॉरवर्ड करते हैं स्टेट ऑथराइजेशन कमिटी के लेवल पे, जिसमें स्टेट की जो एक नॉमिनेटेड एक ऑथराइजेशन कमिटी होती है जो इंटरव्यूज लेते हैं और ऐसे केसेस पे वो लोग डिसीजन लेते हैं। एक बार अप्रूवल मिलने के बाद आप ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हैं। अब हम थोड़ा सा नॉन मैचिंग डोनर के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब ये तो प्रोसेस हमने देख लिया कि अगर कोई फैमिली मेंबर तैयार है और वो मैचिंग भी हो गए तो प्रोसेस कैसे होता है ये हमने देख लिया। लेकिन अगर कोई फैमिली मेंबर तैयार है, वो हेल्दी भी है, तंदुरुस्त भी है, डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन मैच नहीं हो रहा, ओके, तो इसमें भी ऑप्शंस है जैसे कि स्वॉप या पेड किडनी एक्सचेंज करके जो है ये भी हो सकता है, जिसके तहत ये एक परिवार है, ये आपके डोनर है D1 और ये आपके उस फैमिली के फैमिली वन की जो रेसिपिएंट है R1। इनका जैसे आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर है एक रेड कलर है, मतलब आपस में मेल नहीं खा रहा है, तो ये आपस में डोनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एक और ऐसे फैमिली को इंट्रोड्यूस करा देते हैं जिसके तहत उनका भी आपस में मेल नहीं खा रहा है, लेकिन उनके परिवार से आपके परिवार को मिल सकता है और आपके जो रिलेटिव डोनर बनना चाहते हैं वो इनके परिवार में दे सकते हैं, और ऐसे both the families are happy and they live happily ever after. Okay, so इसे पेड एक्सचेंज करते कहते हैं। ये ऐसे 2 जोड़ियों में हो सकता है या 3 जोड़ियों में या ऐसे मल्टीपल्स, मेनी मल्टीपल्स में ऐसे हो सकता है, तो उसे डोमिनो करके भी कहते हैं। इंडिया में आई थिंक गुजरात में सबसे ज्यादा IKDR में दे हैव डन ह्यूज नंबर ऑफ पेड एक्सचेंजेस, सो दिस इज समथिंग दैट इज पॉसिबल। अगर आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, तो ये भी एक नई चीज है। इट इज अ रिलेटिवली न्यू थिंग, इट इज स्लाइटली मोर कॉस्टलियर क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है। अब जैसे कि ये फैमिली देखिए, इनमें ये इनको डोनेट करना चाहते हैं, ये डोनर है, ये रेसिपिएंट है, ये डोनेट करना चाहते हैं लेकिन आपस में नहीं मेल खाते हैं, तो इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करते हैं जिसे प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। और इस प्लाज्मा फेरेसिस ये एक्स्ट्रा स्टेप है जिसके तहत ये डोनर और ये रेसिपिएंट मैच हो जाते हैं।
और ये ट्रांसप्लांट हो सकता है। सो दिस इज व्हाट इज ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। तो ये ऑप्शंस आपको बताना जरूरी है सो दैट यू गेट टू नो कि आगे जाके अगर आप ये ऐसे सिचुएशन में अपने आप को पाते हो तो यू कैन डिस्कस दीज ऑप्शंस विथ योर डॉक्टर्स। अब देखते हैं कि व्हाट इफ देयर इज नो donor within the family, nobody who is willing to donate, or nobody who is matching, और nobody who is young enough and old है तो वो fit enough नहीं है, या कुछ ना कुछ उनको खुद को बीमारियां हैं जिस वजह से वो डोनेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को किडनी मिल सकता है फ्रॉम ए ब्रेन डेड डिसीज्ड डोनर। इंडिया में अभी 1994 में जब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया तो पहली बार ब्रेन डेथ जो है ये डिफाइन किया गया। लेकिन तभी इनिशियली ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन अभी बहुत जो गवर्नमेंट है ये भी पुश कर रही है, सारे एनजीओज, स्टेट गवर्नमेंट्स, काफी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें जुड़ चुके हैं इस प्रोग्राम में, और धीरे धीरे से डिसीज डोनेशन का रेट जो है इंडिया में ये भी बढ़ते जा रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ऑर्गन्स डोनेट करने को तैयार हो रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है, और ये प्रोग्राम धीरे धीरे से इसकी तरक्की भी हो रही है भारत में। सो व्हाट डज दिस मीन? जब कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाता है तो वो एक यूनिक सिचुएशन या सिचुएशन में है जिससे उनके फैमिली मेंबर्स को डॉक्टर्स जो है वो अप्रोच करते हैं कि क्या आप आपके रिलेटिव्स के ऑर्गन्स डोनेट करने को तैयार हैं। तो अगर वो हाँ कहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जो ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट, लंग, लिवर, किडनीज, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब डोनेट हो सकते हैं। और इसके तहत दो जो किडनीज है उसमें से दो व्यक्ति जो वेटिंग लिस्ट पे हैं उनको दिया जाता है। ओके, सो इसका प्रोसेस ऐसा है कि अगर आपको फैमिली मेंबर से मिलना मुश्किल लग रहा है, थ्रू अ लिविंग डोनर किडनी मिलना मुश्किल है, दैट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू, तो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन दिस वेटिंग लिस्ट। हर एक स्टेट का अपना खुद का वेटिंग लिस्ट है। पूरे भारत में एक ही अभी सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन हो गया है, पूरे भारत में आप एक ही हॉस्पिटल में रजिस्टर कर सकते हैं। यू कैन चूज एनी स्टेट ऑफ योर चॉइस, बट रिमेंबर दैट हर एक स्टेट का अपना खुद का वेटिंग लिस्ट काफी लंबा है। किडनी के लिए सबसे ज्यादा, किडनी के लिए वेटिंग लिस्ट ज्यादा है, लंबा है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग किडनी फेलियर, एक ये बहुत ही बड़ा एपिडेमिक होते जा रहा है, बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियों की वजह से ये बहुत पैमाने में बढ़ते जा रहा है, ये हकीकत है। सो फाइंड आउट वेयर यू वुड लाइक टू रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन जो है ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल के थ्रू होता है, तो आपको चूज कर है कि कौन से हॉस्पिटल में आपको ट्रांसप्लांट करा के लेना है। यदि आप लेट्स से मुंबई में हैं, आप चेन्नई में भी रजिस्टर कर सकते हैं, आप हैदराबाद में भी रजिस्टर कर सकते हैं, आप पुणे में भी रजिस्टर, लेकिन एक ही हॉस्पिटल में रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको चूज करना है कहाँ पे रजिस्टर करना है, और उस ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल के थ्रू आपको आपको मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज है, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स वहां के जो है वो पूरा आपको हेल्प करेंगे, और आपका नाम दिया जाता है वेटिंग लिस्ट पे। आपको एक नंबर दिया जाएगा और ये नंबर आपको फिर ट्रैक करना है। ओके, बट रिमेंबर, जैसे कि मैंने कहा, ये जो है वेटिंग पीरियड काफी लंबा हो सकता है। कई राज्यों में, कई स्टेट्स में इट्स इवन 6 years and 7 years ऑफ वेटिंग लिस्ट। लकीली यू नो डायलिसिस ये एक ऑप्शन है, तो डायलिसिस, गुड क्वालिटी डायलिसिस जो है ये चालू रखे, और जो भी डायलिसिस के संबंधित जो भी फिटनेस मेंटेन करना है, ये सब चीजें जो है ये फॉलो करें। निराश नहीं होना चाहिए इस, बिकॉज द वेटिंग लिस्ट इज सो लॉन्ग। और इस वक्त ये जो वेटिंग लिस्ट के लिए जो वक्त है, इस पीरियड में आप अपने जो फाइनेंसेस है ये आप गैदर कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, ताकि जब वक्त आ जाए, जब आपको कॉल आ जाए, आपकी तैयारी, पूरी तैयारी होनी चाहिए अलोंग विद द फाइनेंसेस टू गेट रेडी टू रिसीव द किडनी। अब थोड़ा फाइनेंसेस पे देखते हैं। जब कॉस्ट पे आ ही गए हैं तो कई लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, मैं तो डायलिसिस कंटिन्यू करता हूँ या करती हूँ क्योंकि ये तो चीपर है ट्रांसप्लांट से।
बट आपको सरप्राइज होगा कि आई एम सॉरी टू से बट डायलिसिस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इज नॉट चीपर देन अ ट्रांसप्लांट। जस्ट एक कंपैरिजन कैलकुलेशन, क्विक कैलकुलेशन करते हैं। डायलिसिस का कॉस्ट जो है, अगर आप एक सेशन का अराउंड 3000 रुपीज मैंने पकड़ के चली हूँ, अगर आप मान के चले तो मंथली बेसिस प्लस बाकी के जो कॉस्ट वगैरह है, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, आई एम बट दिस इज जस्ट अ गाइडेंस नंबर। सो महीने का आपका टोटल अराउंड 50 प्लस 1000 का खर्चा होता है, विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 6.5 लाख। और अगर एक इंसान के 30 साल के लाइफ स्पैन में कैलकुलेट करके देखें, तो दिस कम्स टू अराउंड 1.9 crores। दिस इज द कॉस्ट दैट यू हैव स्पेंट ऑन डायलिसिस। vis-a-vis this, let's look at kidney transplant costs। किडनी ट्रांसप्लांट अब अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो अराउंड 10 to 12 lakhs है। कुछ प्री ट्रांसप्लांट के कॉस्ट होते हैं जिसमें इवेल्युएशन वगैरह किया जाता है। पोस्ट ट्रांसप्लांट में वन जो है, पहले साल ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद काफी जो कॉस्ट है थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट के डोसेस जो है ये हाई रहते हैं। फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास चेकअप्स करने पड़ते हैं, तो टेस्ट्स करने पड़ते हैं, तो ये सब के वजह से ये जो है पहले साल में कॉस्ट ज्यादा रहता है, पर दूसरे साल से जो है ये कम हो जाता है और फिर एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन किया जाता है। तो अगर इसमें मैंने सेम 30 years के पीरियड में ये पूरा कॉस्ट मिला के अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो दिस कम्स टू अराउंड 41 lakhs। तो मतलब आप देखिए ऑलमोस्ट 5 times दिस कॉस्ट है। वेयर इज दिस 41 lakhs, वेयर इज 1.9 crores? ओके, सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस कैलकुलेशन टू यू, कि कई लोग फिर सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसे भी है क्या। यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सर्जरी, सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये मोस्ट फ्री में होता है या कि हेविली सब्सिडाइज्ड होता है। लेकिन सारे राज्यों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं ऐसे नहीं है। कोई सिलेक्ट अ फ्यू स्टेट्स में ही किडनी ट्रांसप्लांट्स जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं। प्लस you should be eligible for that, only then you can take benefit of that। So if you are from a non-affording, you're not able to afford it, और आपको लग रहा है ओ माय गॉड इतना कॉस्ट कैसे हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे, तो आप उसके लिए भी ऑप्शंस है। एज लॉन्ग एज यू हैव somebody who is willing to donate, आपको मिलने वाला है, तो आप पहले आपके हॉस्पिटल जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है या सोशल वर्कर है, उनको जाके पूछे कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। कोई गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है क्या, ये आप पहले जांच पड़ताल। फिर ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स करके भी ऑप्शन है। ये आपके ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स या सोशल वर्कर्स अच्छी तरीके से इसके बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहन फाउंडेशन को, हम लोग आपको गाइड कर देंगे। मिलाप, इम्पैक्ट ग्रुप, केटो, ऐसे और भी कई क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आप कोई भी कैंपेन रेस कर सकता है, आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं कि लोग डोनेट करें। आप एनजीओ को अप्रोच कर सकते हैं। कई ऐसे एनजीओ है जो एक्सक्लूसिवली ट्रांसप्लांट सर्जरी को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मोहन फाउंडेशन हमारी जो संस्था है, हमारा एक इनिशिएटिव है कॉल्ड अनुदान मेक ट्रांसप्लांट्स अफोर्डेबल, और इसमें हमने मोर देन 75 पेशेंट्स को हेल्प किया है, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, ये एरिया में। तो आप भी अप्रोच कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सपोर्ट। पार्शियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हम लोग ट्रांसप्लांट सर्जरी की, और हम लोग आपको दूसरे ऐसे एनजीओ से भी कनेक्ट करवा देंगे, जैसे कि ट्रांसप्लांट हेल्प द पुअर फाउंडेशन। ये भी उनसे भी बड़े पैमाने में वो लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे आर वेरी फोकस्ड ओनली इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर ट्रांसप्लांट सर्जरीज। तो प्लीज रीच आउट टू अस। यदि आप इस फेज में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे अफोर्ड करेंगे, डरिए नहीं, आप हमें रीच आउट करिए, हम आपको गाइड कर देंगे। मोहन फाउंडेशन ने लास्ट ईयर 2023 में एक कंपेंडियम भी तैयार किया है। बेसिकली इट इज अ रेडी रेकनर और अ बुकलेट ऑन क्या क्या फंडिंग ऑप्शंस है फॉर डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट्स। ये हमारे वेबसाइट में फ्रीली अवेलेबल है। ये एक बुकलेट है, और आपके स्टेट में क्या क्या ऑप्शंस है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, एनजीओस है, ये सब
सारी चीजें आपको जानकारी मिल सकती है और आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। लास्ट 2 और 3 years में हमने FAQs ऑन किडनी ट्रांसप्लांटेशन करके ये बुकलेट तैयार किया है। दिस इज ऑन दिस वाज मेड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु एंड तमिल। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट हमने नेफ्रोप्लस के साथ ये कोलैबोरेट करके नेफ्रोप्लस के सारे जो गेस्ट्स हैं उनको ये बुकलेट्स हमने प्रोवाइड किए थे। इसमें हमने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, आप जब ट्रांसप्लांट के लिए तैयार होते हो तो व्हाट टू एक्सपेक्ट, और ट्रांसप्लांट के बाद की जो लाइफ होती है ये कैसे होता है, हमने काफी डिटेल में ये सारी चीजें कवर की हैं। तो यदि आपके पास ये बुकलेट नहीं है तो आप हमें प्लीज कांटेक्ट करें और हम आपको विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन आल्सो विथ यू। So just before I end, I want to share some very common misconceptions कि ट्रांसप्लांट के बाद जो है ये restrictions होते हैं क्या। बहुत लोग मुझे आके पूछते हैं कि मैडम हमने सुना है बहुत restrictions होते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसप्लांट का ये आइडिया होता है कि आपको completely rehabilitate करे टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, ना कि आप पे और restrictions डालें। आप एब्सोल्युटली नॉर्मल खाना खा सकते हैं, हाइजीनिक होना चाहिए, आप ऑफिस अटेंड कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, काम पे, वेकेशन पे लोगों को मिल सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, आप बाहर खा सकते हैं ऑफ कोर्स विद द प्रिकॉशंस, आप खेल सकते हैं, वॉट एवर यू वांट यू कैन। सो बेसिकली ऑल ऑफ दिस मीन्स यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्रिकॉशंस लेने हैं। ट्रांसप्लांट के बाद कई लोगों ने बच्चा भी प्लान किया हुआ है। इट इज पॉसिबल इन मेल प्लस फीमेल रेसिपिएंट्स, डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके करना होता है। किडनी ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा सक्सेस रेट हो चुका है आजकल के तारीख में। किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन नहीं जबकि फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर किडनीज फेल हो गए हैं तो प्रिएम्प्टिव ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, जिसमें डायलिसिस से जाने से पहले भी कई लोगों ने ट्रांसप्लांट कर रखा है, डायलिसिस के बाद भी हो सकता है। इवन डायलिसिस लंबी समय तक अगर चलता रहा तो भी उसके बाद ट्रांसप्लांट हो सकता है। और अगर आप ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे लग रहा है तो हमने जो डिस्कस किया कि ये काफी सारे ऑप्शंस है आपके पास फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, फिर मन में डर किस बात की। हम सिर्फ ऐसी चीजों से डरते हैं जिसकी हमें समझ नहीं होती है जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। एक बार कोई भी चीज में हम लोग घुस गए, जान गए, तो फिर अपना मन खुल जाता है, आंखें खुल जाती है, फिर वो डर चला जाता है। सो अगर आप इस चीज से डर रहे हैं तो किसी और ऐसे ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट या डोनर से इंटरेक्ट करिए, मिलिए, ताकि आपका मन जो है इसमें क्लैरिटी मिल जाए। डॉक्टर से बात करिए, अपने डॉक्टर से। तो और इस चीज से डरिए मत, ये बहुत अच्छी चीज है ट्रांसप्लांट जो है, और ये एक नॉर्मल लाइफ है। Before I finish my presentation, one last thing I wanted to say, buying and selling of organs. बहुत लोग जब हमारे ये इस सिचुएशन में हमें देखते हैं, अपनी बेबसता देखते हैं, see how helpless we are. There are some people who may approach us wanting to provide us the organ provided we pay them money. But buying and selling are equally illegal. एंड ये इसमें बिल्कुल भी आप नहीं जाएं, जितना भी तकलीफ से गुजर रहे हो, बट प्लीज इस चीज में नहीं जाए, क्योंकि इसमें जुर्माना जो है बहुत बड़ा है। जेल होती है, 10 साल की सजा होती है, एंड देन अप टू 1 करोड़ का फाइन है। तो मतलब लाइफ बिकम्स इवन मोर मिजरेबल if you enter into these things. So even though I can completely understand, बहुत से फैमिलीज ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं कि कैसे भी करके हमें किडनी पाना है, लेकिन जो भी है, आप जो लीगल तरीके हैं यही समझ ले और यही सब फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। ये ट्रायम्फ जो कमल ने इंट्रोडक्शन के टाइम में बताया था, ये हमारा पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है। हम आपको एनकरेज करेंगे कि हमें कांटेक्ट करें, रीच आउट करें और इससे शामिल हो जाए, ताकि आप और भी ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें और आपके मन में जो भी डाउट्स है ये क्लियर हो जाए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।
Thanks so much, Jaya. That was a wonderful presentation and a wonderful talk. And I'm sure all of us learned a lot from that talk. A lot of questions have got clarified. But we'll give the attendees a couple of minutes if they have किसी को कोई भी questions हो ट्रांसप्लांट के बारे में जो आप जया जी से पूछना चाहें तो चैट में आप टाइप कर सकते हैं and we will take up those questions one by one. So there was one question on where we can get the recording of the session, and I mentioned that it will be posted on the NephroPlus social media like YouTube and Facebook and so on. There is a question that has come. What is the lifestyle one should follow after a transplant? नॉर्मल जी सकते हैं, सिर्फ को खाने पीने में जो है यू हैव टू फॉलो प्रिकॉशंस, यू हैव टू ड्रिंक एम्पल वाटर, यू हैव टू एक्सरसाइज, क्योंकि जो मेडिसिन है इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. कीप एक्सरसाइजिंग, कीप योरसेल्फ फिट. जो नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल है किसी ने भी ऑन एवरेज पीपल शुड बी फॉलोइंग, वही आपको फॉलो करना है. खाने पीने में भी आई एम सॉरी बट रोड साइड फूड ईटिंग इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन, बट यही चीज आप घर पे बना के खा सकते हैं या अच्छे That's a होटल deal में breaker जाके for खा me, सकते Jaya. That's a deal breaker for me. हैं. मैं तो घर पे बना के खाती हूँ. No, just kidding, just kidding. Next question is how long there is isolation after a transplant? Transplant के बाद कितने दिन isolation में रहना पड़ता है? तो वेरी गुड क्वेश्चन. ट्रांसप्लांट के बाद जनरली 2 to 3 months बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन रहते हैं उसका डोसेस, इम्यूनोसप्रेसेंट्स के डोसेस वेरी हाई होता है, और धीरे धीरे से डॉक्टर उसे टेपर करते हुए, कम करते हुए आते हैं. और जनरली इन योर 3rd month डॉक्टर खुद ही आपको बोल देंगे कि अभी आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर आपको पुश करेंगे कि आपका नॉर्मल लाइफ जिए, अभी आइसोलेशन में रहने की जरूरत नहीं है. बट 1 साल तक मैं ये कहूंगी कि अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस या कंफाइंड प्लेस, जैसे कि लिफ्ट में ट्रैवल करे तो मास्क पहन ले, भीड़ भाड़ में जाना है तो मास्क पहन ले, जो N95 वाला मास्क है अच्छा वाला वो पहन ले. घर पे भी अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो उनसे दूर रहे. दीज आर द प्रिकॉशंस यू शुड फॉलो. आइसोलेशन जनरली 2 to 3 months. Your doctor will then tell you, okay, you're ready. Always check with your doctor. डॉक्टर इज योर नाउ फ्रेंड फॉर लाइफ टाइम. नेफ्रोलॉजिस्ट जो है ये हमारे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है. दे आर द वंस हु टेक गुड केयर ऑफ अस. कुछ भी हो, डेंटल प्रॉब्लम हो, पेट दर्द हो रहा हो, डॉक्टर को बिना पूछे कोई भी दवाइयां नहीं लेनी है. बट या आइसोलेशन 2 to 3 months, the doctor will give you clearance. The next question is there a maximum age for the donor? हाँ, so generally yes, there is a maximum age, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गन्स जो है इनमें भी वेर एंड टेयर विद एज होता ही है. डॉक्टर्स चेक करते हैं कि जो ऑर्गन्स है दे शुड बी इन गुड कंडीशन, तभी आपको देने में उसमें सेंस है. अगर गुड कंडीशन में नहीं है तो आपको देने में सेंस नहीं है. सेकेंडली जो डोनर है आफ्टर सर्टेन एज उनको भी रिस्क नहीं होना चाहिए. तो दिस इज व्हाट द डॉक्टर्स चेक. So generally 65 is the limit, but फिर भी ऐसे unique cases हुए हैं जिसमें even at the age of 80 people have donated their organs because the donors have been in absolutely good health and they are very keen. So it's their autonomy of the body, उनकी wish है, उनकी इच्छा है. So with the doctors, कड़ी निगरानी, they have gone ahead and donated. Okay, the next question is अभी मेरा creatinine 2.5 है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, क्रिएटिनिन जब एलिवेटेड रहता है तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट जो है आपके डॉक्टर्स, उनसे एवरी स्टेप ऑफ द वे गाइडेंस लेना है. डॉक्टर्स जनरली ये बोलेंगे कि एक ये 2.5 जो है उसमें दे विल टेल यू हाउ टू मैनेज विद सीकेडी इन टर्म्स ऑफ फूड, वाटर रेस्ट्रिक्शंस. तो वो डाइट वगैरह, चार्ट वगैरह जो है जो फॉलो करना है वो आप फॉलो कर सकते हैं. जनरली एक 6 to 7 जब क्रिएटिनिन क्रॉस करने वाला होता है तो डॉक्टर आपको डायलिसिस एडवाइस करेंगे. बट इट इज जनरल थिंग, यू हैव टू चेक विथ योर डॉक्टर. आपके केस में इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, तो अपने डॉक्टर से चेक करें.
डोनर एज का मिनिमम क्या हो सकता, मिनिमम एज क्या हो सकती है? मैक्सिमम भी पूछा है, लेकिन मैक्सिमम आपने ऑर्डर आंसर कर लिया है, तो मिनिमम के बारे में अगर बोलेंगे तो। मिनिमम 18 प्लस होना चाहिए, क्योंकि डोनर जो है वो अपने आप दे शुड बी एबल टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड दैट दे हैव टू बी एडल्ट्स टू बी एबल टू डोनेट। या क्योंकि लाइक वी सॉ कि डोनर पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, दे शुड बी टेकिंग द डिसीजन बाय देमसेल्व्स, खुद की इच्छा से, स्व इच्छा से। और वो स्व इच्छा जो है, ये डिसीजन तभी आती है जब वो एडल्ट्स होते हैं, इसलिए लीगली इट इज रिक्वायर्ड दैट दे शुड बी एडल्ट्स टू डोनेट। जबकि मुझे तो लगता है इवन एट द एज ऑफ 18 19 आई डोंट थिंक वी हैव दैट maturity to decide these things. There's so many things going on, बच्चे ही हैं, but फिर भी the law says 18, so that's what. Right. Next question is, my mom is having kidney failure. She has arthritis and BP issues. I am scared if I get my dad to donate, would it work? I do not want to put him also at risk. Okay, so whenever we are scared of these things, the best thing to do is go discuss with the doctor, क्योंकि he will look at both the medical history of both your parents, and then he is the best one to advise you what is to be done. क्योंकि ऐसे यहाँ पे I am not a medico, I'm sorry, but I'm not a medico. And secondly, हर एक का सिचुएशन अलग होता है, मेडिकल हिस्ट्री अलग होता है, और ये सब जाने बगैर कोई आपको ऐसे बता नहीं सकता. सो बेस्ट थिंग इज यू प्लीज डिस्कस विथ योर डॉक्टर. द डॉक्टर विज द बेस्ट पर्सन टू हेल्प यू. ओके, फ्रेंड्स डोनेट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, फ्रेंड्स डोनेट कर सकते हैं. ऐसे बहुत रिमोट केसेस भी हुए हैं जिसमें फ्रेंड्स, नेबर ने डोनेट किया है. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसमें कोई मनी एक्सचेंज ना हो, एंड one should be able to prove that the friend, they have been friends for fairly long period of time. And बेसिकली हमें जो अथॉरिटीज है, जो कमिटी है, ऑथराइजेशन कमिटी, उन्हें कन्विंस करना होगा कि इनका इरादा सही में इनको मतलब इनको किडनी देने का जो इरादा है, इसमें कोई गलत सलत चीज नहीं है. नो मनी एक्सचेंज और एनीथिंग इन काइंड, एंड द इंटेंट इज प्योर. अगर ऑनेस्ट इंटेंट है, प्योर इंटेंट है, तो डेफिनेटली हो सकता है. If the donor is having a history of diabetes and hypertension of 4 to 5 years, then can we accept for the transplant? I'm sorry, can you repeat that question? I didn't get it. If the donor is diabetic and Oh, no. hypertensive for 4 to 5 years, can they donate? So obviously this is a high risk for an individual, but the doctors, if they feel that अच्छा control में है, BP पूरे control में है, या diabetes भी is in proper control, so they may advise, but I would not be the right person to tell you offhand like this. Please check with your doctor. I'm sorry, but काफी चीजें जो है ये केस टू केस बेसिस पे होता है. इसके लिए आपका मेडिकल हिस्ट्री एंड ये सब चीजें डॉक्टर से चेक करके ही आपने डिसीजन लेना है. बट आई वुड से दैट यस, अगर प्रोलॉन्ग काफी टाइम तक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन है, तो द पर्सन इज हाई रिस्क फॉर kidney failure himself or herself, so the doctor may not consider. I think we'll just do last 3 questions जो है. मेरा क्रिएटिनिन 2.5 है, मुझे डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए? If your doctor is asking you to go in for a transplant, तो आप सोचने लगिए उस दिशा में. Doctors are the right people to advise you कि आपको ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, आपका जहाँ पे कॉन्फिडेंस हो ऐसे जाएं. अगर मन में कुछ डाउट है तो आप एक लिस्ट बना के डॉक्टर से पूछे, क्योंकि आपको इस डॉक्टर के साथ, ये आपके लाइफ लॉन्ग दोस्त बनने वाले हैं. अभी आगे जाके आपको इन पे कंप्लीट डिपेंड रहना है, तो उन पे विश्वास जो है, ये ट्रस्ट फैक्टर जो है, ये इक्वेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है आते हैं, तो आप लिस्ट करके रखिए. मैं ऐसे ही करती हूँ, एक पूरी लिस्ट बनाती हूँ, डॉक्टर के सामने बैठ के डॉक्टर को बोलती हूँ, डॉक्टर 5 मिनट आपका लगेगा मुझे, मेरे 5 क्वेश्चंस है, और एक एक मैं पूछती हूँ.
तो कई बार क्या होता है, हमारे मन में तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन डॉक्टर के सामने हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स आर आल्सो इन अ हरी, इतने पेशेंट्स है, लंबा क्यू है। सो ऑलवेज मेक अ लिस्ट। मन में जो भी डाउट है सब फिर से पूछ लीजिएगा। एंड बाहर आते वक्त, रूम से बाहर आते वक्त आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Can you please guide on low potassium diet? Check with your dietitian. Obviously, there's a lot of content on the internet as well, which talks about कि कौन से diet में higher content of potassium है, foods to avoid, alternative foods that you can consume. काफी content है. Go for any of the reliable websites, or you can also consult a dietitian who will advise you, because it's a extensive thing. So I don't think we can get into that discussion right now, but that would be my suggestion. I think last question before we move to Anant Jaz. There are a few more questions, but maybe if you can just answer them offline because we're running short of time now. Is there any permission required from government to receive kidney even from relative like spouse? No. So government permission, as in the law says that स्पाउस भी जो डोनेट करते हैं, इनमें कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो स्वेच्छा से डोनेट करना चाहिए। तो ये जो है, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स, इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स को एम्पावर करके रखा है कि हॉस्पिटल्स की खुद की कमिटीज ये डिसाइड कर सकते हैं और अप्रूवल दे सकते हैं। तो इन अ वे दे आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सो हॉस्पिटल की खुद की कमिटी होती है स्पाउस के लिए वगैरह, बिकॉज स्पाउसेस आर नियर रिलेटिव्स, फैमिली, विद इन द फैमिली है। सो the hospital can themselves decide, and they're empowered to decide on these things. Thanks so much, Jaya, for that patience with which you answered all the questions. We'll come back to you maybe after Anant finishes his talk, if we have time. So moving over to Anant, and I'll just give a brief introduction of Anant. Anant Anekar is an IT professional with 24 years of experience. He's a proud kidney donor to his 13-year-old son Ishan. It has been nearly 3 years since Ishan underwent the transplant, and he is doing well. This journey of organ donation and transplant inspired Anant and his wife Mansi to work for other kidney patients. They are currently working with Kidney Warrior Foundation and Kidney Foundation for Children Suffering Kidney Failure. Both these NGOs work towards betterment of patients suffering from kidney disease and who are on dialysis. So it's a fantastic opportunity for all of us to listen, to hear directly from a kidney donor. I'm sure a lot of our relatives probably have concerns, questions on how safe is it to donate a kidney. So while we love our family, but there are always questions about how will this affect my health over a period of time. So that's why we have Anant to answer. First, talk about his experience, his journey, and then we can open it up for questions. Thank you. Over to you, Anant. Hello, Kamal. Hi, Jaya. That was a wonderful presentation. I really loved it. And really, you covered everything. Hope I am audible, right? Yes, you are, Anant. So, you almost covered every part of the organ donation, or we can say for the kidney transplantation required. So, to give the subject and the points which I have received for this discussion was benefits, challenges, and the story, success story. So to start for that, I will firstly introduce myself and the short story of my son, he was suffering from the kidney disease. He was suffering from his age of 2.5 years actually, and over a lot of span, we were able to manage my son Ishan's health with the diet and the medication, whatever our doctor suggested. But after a few days of almost 7 to 8 years in 2021, his creatinine levels were started increasing. So the transplantation is definitely beneficial or benefited for to my son because he was having a lot of pain going through when his creatinine started increasing. He was not able to eat food, omitting after just small piece of food, and his weight lost. Then taste also he lost his taste as well, and during the dialysis also he was suffering from pain. Many times the flow of the blood during the dialysis
was not proper, so he was having a lot of pain. Also, he was having seizures, which caused him two or once or twice major hospitalization. So these all pain actually motivated me, I thought of, instead of putting him in all this pain, why shouldn't I go for the kidney transplant, or donate my kidney to my child? Because in my childhood, if you see, I have enjoyed a lot. I played, I enjoyed every bit of my childhood. But seeing my son in this all pain was definitely uh, unbearable. So that actually motivated or decide caused me to decide that I will donate my kidney to my son, actually. And there was, when it is decided that Ishan needs a kidney transplantation, then we have discussed these matters, all these options, various options with our doctor, Dr. Uma Ali. She's Ishan's pediatric nephrologist, and she guided us through all this journey. Actually, after discussing with her, I had no doubt that yes, it is good, and one can definitely live with one kidney. There is no harm, no health concerns, or no life threats if we donate our one kidney. Kidneys are meant to be shared. That's what my understanding, because we have two kidneys, right? अपने पास दो किडनी है, तो एक तो डेफिनेटली हम दूसरे को दे सकते हैं. मैंने जो अंडरस्टैंड किया किडनी डोनेशन के बारे में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि दोनों किडनी है, लेकिन दोनों 100% काम नहीं करता है हमेशा. नॉर्मल पर्सन के लिए भी वो 100% काम नहीं, थोड़ा ये करता है, थोड़ा ये करता है. तो ऐसा नहीं है कि अगर एक किडनी कम हो गया तो अपना काम जो बॉडी का चल रहा है किडनी को यूज करके वो कम हो जाएगा या उसको कुछ डैमेज हो जाएगा. तो वन किडनी, एक एक लोगों को तो मतलब उनकी बर्थ से ही एक ही किडनी होता है. So they also come to know after very long time, when some for some reason, if they started they do their sonography or some health checks, they come to know that they have one kidney only. So aisa, it is okay to have one kidney. So this all actually finalized, and when Uma discussed with ma'am Uma Ali, I have decided. I feel that Uma Ali ma'am is the angel, or a person who sent by my beloved Sadguru Sri Panta Maharaj for our son Ishan, because she guided us very nicely, and she is like definitely an angel to us, because of her only, whatever we can see, Ishan's health is now is only because of guidance and uh, treatment by Dr. Umali. So actually, in this process, again, my wife has asked if I wanted to discuss this point of donation with any donors who already donated kidneys. But I think I didn't prefer that. I decided I don't want to go for a second thought whether should I go or not. So I decided it, and I have finally we made the kidney transplantation on 11th of November 2021. It's been 3 years now, and Ishan is doing very well. He he he's he's doing well. He's joined school back. He started. He's a competitive swimmer, and he joined his swimming as well nowadays, and he's doing swimming as well now. Anant, can I share the photos Yes, that you yes, had shared with yes. me? Yeah. Okay. Also, Anant, when you speak, if you can keep the mic a little closer Yeah. to your mouth, because there have been some comments about that. Yeah. Yeah. Just sharing a few photos that Anant shared with us. Yeah, That's he's my Anant and son. Ishan. Yeah.
He's doing badminton as well as he's doing swimming now. Also, Ishan and me took part in the kidney national Narmada Foundation's transplant game, national transplant game last year. He won 2 gold medals. I won 2 silver medals. So life is pretty normal after kidney transplant after 3 years. So first of all, what I see as a challenges, the second part of it is the challenges. तो challenges what I see here is कि उस जो जैसे हमको पता चला कि उसका ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और जो मेंटल ट्रॉमा या जो अपने ऊपर जो मेंटल प्रेशर आ जाता है कि हाँ ऐसे कैसे, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हमारे बेटे के साथ ही क्यों हो रहा है, तो ये सारा चीजें, और लोग बोलते हैं कि आप ये करते हो वो करते हो, फिर आपके साथ ऐसे क्यों हो रहा है, जो मेंटल एक धक्का पहुंचता है अपने को, तो वो दैट इज मेजर कंसर्न एक्चुअली। अगर वो आप एक बार टेक ओवर करके जाते हो, जो एक्सेप्टेंस, ये चीज अपने पास है, अभी वी नीड टू डिसाइड एंड वी नीड टू फाइट इट, बिकॉज वी कैन सी लॉट ऑफ पीपल कैंसर से जो ये होते हैं, तो वो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दे कैन फाइट एंड रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पे तो अपने के लिए ऑप्शन है कि वी कैन हैव अ पर्सन डोनेटिंग अ किडनी, एक स्पेयर वाला किडनी उसके पास जो है वो दे के वो एक किसी का लाइफ बचा सकता है। वो है ऑप्शन इन किडनी डिसीजेस। सो ऐसा बाकी में नहीं है, राइट, वेरी रेयरली है, और वहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत रेयर है, लेकिन किडनी रिलेटेड ऐसा नहीं है। यू हैव डेफिनेटली ऑप्शन। डायलिसिस है ही, लेकिन डायलिसिस ज्यादा पेनफुल लगता है मुझे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए। दैट इज वन ऑप्शन। डायलिसिस ओनली जस्ट एक्सटर्नल किडनी बोल सकते हो आप, वो मशीन करता है जो आपका किडनी काम कर रहा है। तो लेकिन बेटर, अगर वो आप जो पर्सन सफर कर रहा है उसका लाइफ आप इजी करना चाहते हो, तो डोनेशन, किडनी डोनेशन इज द ओनली एंड गुड वे, बिकॉज अवर टेक्नोलॉजी वाइज और जो हॉस्पिटलाइज वाइज अब हम देखते हैं तो इट इज़ वेरी एडवांस नाउ। जैसे जया जी ने मेंशन किया कि द टेक्नोलॉजी वाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल, हॉस्पिटलाइजेशन नॉर्मल है, एवरीथिंग इज इट इज एंड इंडिया में तो वैसे कंपैरेटिवली सस्ता भी है, अगर बाहर का देशों से देखते हो तो बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं। तो ऑल दिस मैटर्स एक्चुअली, बस बट इम्पोर्टेंट थिंग इज एक्सेप्ट करो कि ये है और इसको फाइट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप इज बिलीव इन डॉक्टर्स, कि आपको डॉक्टर पे बिलीव करना है कि हाँ आपने बोला है ना, तो देखो उनसे बात करना, जैसे जया जी ने बोला कि पॉइंट्स निकालो, उनसे बात करो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो अनआंसर्ड है, सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर ले लो एंड डिसाइड करो। मुझे पर्सनली पूछोगे तो आई वाज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। एक क्वेश्चन था इसमें कि मुझे 5 4 5 साल से हाइपरटेंशन है। 2017 में मुझे हाइपरटेंशन चालू हो गया, बीपी की एक गोली लेता हूँ मैं हर रोज, और 2021 में हमने ये किया। तो वहाँ पे जब भी मुझे डोनेट करना है ऐसा डिसाइड हुआ, तभी ये सारा मेरा मेडिकल चेकअप्स वगैरह हुआ। उसमें जो वो हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना होता है, तो वहाँ पे सारे टेस्ट वगैरह करते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं। तो उस टाइम पे सडनली, बिकॉज इट इज़ अ बिग डिसीजन, हमेशा डॉक्टर के पास जाते ही मेरा बीपी बढ़ जाता था तो तो इसके चक्कर में डॉक्टर ने मेरी दवाई बदली। एक दवाई था उसका 2 किया, वो 24 आवर्स का जो चेकअप होता है कि बीपी का मशीन लगा के वो किया। तो ये सब कुछ करने के बाद बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, मतलब अपना यूरिन का जो 24 आवर्स यूरिन का वगैरह तो वो नॉर्मल थे, लेकिन समहाउ जब भी डॉक्टर के पास जाता था तो बीपी हाई हो जाता था तो डॉक्टर वाज नॉट एग्रीइंग कि आप नहीं करोगे, नहीं तो बाद में आपको तकलीफ हो जाएगा आपका किडनी। तो ओवर द पीरियड इट गॉट सेटल्ड, आई एबल टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम नेफ्रोलॉजिस्ट हेड, डिपार्टमेंट हेड, एंड वी गॉन थ्रू दिस, बट इट इज पॉसिबल। मुझे जो अंडरस्टैंड होता है कि डायबिटीज ऑब्वियसली डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए, लेकिन डायबिटीज इन सर्टन केसेस आई थिंक दे अलाउ, एंड for BP, if it is in control, it is definitely okay, and it is manageable, and you can donate a kidney. Okay.
फाइनेंशियल चैलेंजेस मोस्टली जया जी ने इतना कवर किया है तो मुझे उसमें कुछ जाना नहीं है। इमोशनल तो है, बहुत सारा इमोशनल चैलेंजेस डेफिनेटली है, क्योंकि ये फेज में ऐसा है कि आप इतना बड़ा ट्रांसप्लांट इज मतलब एक जिंदा आदमी के अंदर का एक ऑर्गन निकाल के एक दूसरे जिंदा आदमी के अंदर डाल रहे हैं। तो इट्स डर तो लगता ही है। तो और इमोशनली क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल में कैसे ट्रीट करेंगे, उसके बाद कैसा होगा, लाइफ कैसा होगा, मैं चल पाऊंगा क्या, मतलब ऐसा। लेकिन आई रिमेम्बर ओनली आफ्टर 5 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आई गॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। एंड आई वाज मतलब मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर वजह मेरे डॉक्टर थे लीलावती हॉस्पिटल में, तो वो उनको बोला कि नहीं मैं 1-2-3 दिन और रुकता हूँ। तो उन्होंने बोला है आनंद, चल चल चलना है, चलो वॉक करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ आपको। ऐसे करके उन्होंने जो एनकरेज किया ना, तो 5वें दिन मैं घर आ गया था। और मुझे याद है कि इमीडिएटली विद इन 1 मिनट 15 days ऑफ आई थिंक मेरा एक प्रोजेक्ट गोलाई था, तो गोलाई एक्टिविटी भी मैंने घर पे बैठ के किया था। तो ऐसा नहीं है कि और आई started working immediately within 15 days I think I have started working. So उस दौरान जो first 5 days है that is painful obviously, but if now technologies are very good and the pain management is very good, so that also can be managed. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा। एंड लेप्रोस्कोपी वगैरह किया तो बिल्कुल ही कुछ ज़्यादा टेंशन वाला है ही नहीं। बीपी कंट्रोल करना है हेल्थ वाइज अगर बोलते हो तो इट इज आपको सिर्फ मेंटेन करना है जो भी आपका डिसीज है। जैसे बीपी है तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद, आपका डोनेशन के बाद डेफिनेटली आपको आपका हेल्थ को ध्यान देना है, मेजर करो, डेली रेगुलर हेल्थ चेकअप करो, एंड आपका बीपी कंट्रोल में रखो, दवाई नहीं छोड़ना है, वो दैट इज मोस्टली इम्पोर्टेंट। Coming up to after within 3 years we have done lot of things actually success stories में मैं बोलना चाहता हूँ definitely कि फर्स्ट ईयर के बाद जो फर्स्ट हमारा ईयर कंप्लीट हुआ, ट्रांसप्लांट एनिवर्सरी था 11th ऑफ नवंबर 2022 में। तो वी हैव सेलिब्रेटेड इट, वी हैव प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, किडनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। और जो मेरे नियर एंड डियर वंस थे जिन्होंने पूरा ये फेज में हमको हेल्प किया, उनको सबको लेके वी हैव सेलिब्रेटेड इट प्रॉपरली इन अ होटल लाइक अ पार्टी। एंड सबको ये क्या है, हमने तो बर्थडे किया था, मैरिज एनिवर्सरी किया था, ये किडनी ट्रांसप्लांट एनिवर्सरी क्या है? तो मैंने सोचा because that is actually a birth of my son, actually a rebirth of my son. He started to live his normal life again. So for us it is the celebration time, and we have decided for every year we will celebrate it. It's a celebration time for us. Last year also we did the same, and this year also will definitely going to celebrate. So that is then after international travel bhi humne kiya. Recently we went to Vietnam for 10 days and that was also good. Just जैसे जया जी ने मेंशन किया, हाइजीन, वाटर, इतना जो अगर प्रॉपर फॉलो करते हो, मास्क लगाना, स्पेसिफिकली फॉर ईशान, फॉर नॉट फॉर मी, नॉट आई एम प्रीटी नॉर्मल। जब तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मैंने किडनी डोनेट किया तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने कुछ ऐसा किया। मोस्ट पीपल गेट सरप्राइज व्हेन आई टेल देम या आई एम अ किडनी डोनर, क्योंकि देख के मेरे मुझे देख के आपको लगेगा ही नहीं कि इतना प्रिटी नॉर्मल लाइफ है। ऐसा नहीं है, कोई भी मुझे देख के सामने से ऐसा गेज नहीं कर सकता कि आई डिड किडनी डोनेशन। ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में बताया, ईशान एंड मी participated last year in transplant games. This year also we are planning in December, I think they are there in Mumbai. Swimming, he started swimming again, so that is also a good part. सोशल वर्क के बारे में बताना है कि ऑल दिस जर्नी एक्चुअली ना बहुत ही पेनफुल, एंड ये रहने के बाद अभी इट इज गुड ऑल दिस। बट वी सी, मतलब हमने देखा कि बहुत सारे किड्स जो उनको गाइडेंस, उनके फैमिलीज को जो किडनी से सफर, किडनी डिसीज से सफर हो रहे हैं, उनको भी गाइडेंस एंड हेल्प की जरूरत है। तो
before kidney transplant, actually, Mansi has linked herself with Kidney Warrior Foundation. Vasundhara ma'am, she's a real inspiration. She's very good for supporting all these kidney related patients and all. So उनके साथ वो मानसिक काम कर रही थी, मतलब टच में थी, उनका डिस्कशन हो रहा था। लेकिन जैसे हम ये कंप्लीट होने के बाद ऐसा लगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारा मतलब अज्ञान है। पीपल डोंट नो अबाउट, उनको सिर्फ किडनी स्टोन के बारे में पता है, बाकी कुछ पता नहीं है किडनी के बारे में, और किडनी शेयर हो सकता है ये भी पता नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इसके लिए, बच्चों के लिए तो एटलीस्ट डेफिनेटली काम कर सकते हैं जो किडनी से डिसीज से सफर हो रहे हैं। तो दैट इंस्पायर्ड एक्चुअली। तो मानसी इज वर्किंग फॉर किडनी वॉरियर फाउंडेशन एंड किडनी फाउंडेशन फॉर child. Kidney Foundation for Child is by Uma Ali ma'am, who is she is the nephrologist, pediatric nephrologist for Ishan. So both of these organizations she is working. Mostly अभी जो उसने वो जो काम कर रही है मानसी, that is for education of the kids which are on dialysis, क्योंकि उनका dialysis के चक्कर में, ये हेल्थ के चक्कर में उनका एजुकेशन छूट गया है। So we are trying a way somehow we can manage their education as well. तो प्रथम करके एक इंस्टीट्यूट है, उनके थ्रू अभी इनिशियली 4 या 5 बच्चों को जस्ट रिसेंटली उनको एनरोल कर दिया है, एंड दे आर नाउ हैप्पी एंड गोइंग विद देयर स्कूलिंग्स एज वेल. So this is it. I am daily used to travel to BKC, normal life. मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, गांव जाता हूँ, सभी कुछ करता हूँ. इनिशियल सिर्फ पहले 3 महीने में मुझे कुछ उठाना के लिए मना कर दिया था. Otherwise, after that, it's pretty normal life and everything is normal. And that's it. और क्या बोलूँ? You can ask me the questions. I don't know. Hope I have. Thank you so much, Anant, for that very heartwarming and genuine, heartfelt talk. We'll open it up to questions. तो अगर किसी को भी कोई questions पूछने हैं अनंत जी से, तो आप अभी पूछ सकते हैं, या तो आप chat में टाइप कर सकते हैं, या Q&A section है वहाँ टाइप कर सकते हैं. In the meantime, Jaya, till people type questions, there is one question pending from the previous list, which is, as dialysis is getting covered under health insurance and transplant is costly plus requires surgery, most patients would fear for the latter option due to cost and surgery. What common initiatives are government or private organizations taking to spread this awareness so patients can take informed decisions? Very nice question. So, first of all, not all state governments have schemes. So, first of all, find out from your own hospital as to what schemes are available, government schemes are available in your state, and also whether you are eligible for them. Also, like I shared with you, there are NGOs like Mohan Foundation, like Transplant Help the Poor Foundation. So these NGOs also provide partial support in, the transplant surgeries. Also, in many ways, we also have tie-ups with the hospital, wherein we request the hospital that if you are approaching us for support, financial support for this patient, non-affording patient, what are you doing for it? So we also encourage the hospital to reduce their cost on the overall. So these are the measures that we do. But other than that, there are government schemes, state government schemes, central government schemes that may be eligible. There is something called as PM Fund, PM Relief Fund, CM Relief Fund that are available. Check with your transplant coordinator if you are eligible for them and how you can apply. It could be the transplant coordinator, it could be the social worker in your hospital as well, who is aware of these things. Also, many of you would have heard of crowdfunding, which has taken the world by a storm these days. And a lot of the transplant centers have tie-ups with the crowdfunding platforms like Milap or Impact Guru, Keto. So whenever you're scrolling through Facebook or Insta or such social media, you will get ads
जिसमें patients are making an appeal for financial support. तो ऐसे ये लोग promote करते हैं. They have their own set of donors, so they do a lot of campaigning as well to drive your campaign. And these are the different ways in which money can be raised. So first see whether what you're eligible for, do the homework. It could be on a case-to-case basis. Every state government has a different scheme. Tamil Nadu has something different. Telangana has something different. So check with your plan coordinator. They are the best people to guide you and know what are the options that are available. You could also check with us. You could also call us on our number, and we'll also share whatever information that we are happy to share. Also, visit our website for this financial compendium, because this financial compendium for transplant surgeries has been put together with a lot of transplant coordinators who are working in different states. So there's state-wise representation, and there's a lot of energy and efforts that have gone into putting this compendium for patients who are considering a transplant. So these are the various options in which you could get knowledge so that you can take an informed decision. Thanks so much, Jaya. And the question was also about private organizations. So I'll just talk for half a minute about what NephroPlus is doing. So NephroPlus organizes patient awareness seminars, talks. We work very closely with Mohan Foundation, where Mohan Foundation team has collaborated with us on this webinar. Plus, their team has visited our centers, talked to our guests, and also Mohan Foundation has done quite a few talks in our patient education event called Ashaएं, which we hold from time to time in various cities. Moving on to the next question, there was a question on precautions to be taken in the run-up when the number comes closer. I think that you already answered in the Q&A section, so I request you to please refer to the answer there. The next question is, post-surgery, the patient has to be kept in a separate room. So can the family members enter into that room? Okay, good question, very good question. Let me share with you one incident. I just remembered that. So in our office in Parel in Mumbai, there was one couple who walked into our office, and they said that the gentleman was the transplant recipient and the wife had donated to him. He was wearing a mask and all of that, and he came in, I think he had completed about 4 months post-transplant. And they had a lot of questions on how to take care, precautions and all that. I answered all of them. And the lady at the end was just hesitant to ask something, but she said, "Can I ask you a personal question?" I said, "Yes, yes, please go ahead and ask." I said, "Can I touch him?" So yes, of course, you have to, the point is that yes, but your relatives must take care of certain things. When they come from outside, they must have a bath. They must change the clothes, wear clean clothes. So hygiene factors are broadly important. And before coming into your room, they should sanitize or wash their hands and then enter the room. So these are simple things, very small steps, nothing big. Of course, the family members can enter, but if they have cough, cold, or if they have a throat infection or something like that, please stay away. They're not allowed to enter the room. Okay, so yeah, and if nobody is there in the room, you can take off your mask as well. One small suggestion that I would like to give is the AC in the room. If you have an AC which you are going to be operating in the room where you're going to be immediately after the surgery, before you occupy that room, make sure that the family people, family members sanitize it well. It is wiped with Dettol. If you have a window where there are birds and all, then put a jali over there, net, so that birds and all don't come inside, because the droppings are not good for health. Small things. Even if you're going to be traveling by the car, just get the AC filter of the car serviced before you start traveling by the car post transplant. So these are simple things, small things, but to be taken care of. Of course, family members can enter. My daughter was a 5-year-old at that time when I had my surgery, and she used to play outside, so she was not allowed to come inside. I mean, these are small things that I remember, but yes, of course, they can
have a good time with your family. Just make sure that the family members take these care. So imagine after the transplant surgery, we are like babies, newly born babies. Whatever care is to be taken with a newly born baby in terms of hygiene, not passing on an infection, same things need to be taken care of. That's just about it. Of course, they can enter. Nice. I think last couple of questions, Jay, and people who have raised their hands, please type your questions on the chat or in the Q&A section. So, Jay, the question is, how long do we need? Oh, this is from Ishan Anekar. Is that the Anand's chat? Okay. Ishan, What's you're the supposed to question? be talking and giving the answers here, not asking questions. But anyway, how long do we need to take immunosuppressive medicines after kidney transplant? Lifelong, baby, lifelong. It's to be taken lifelong. They are our friends. And these immunosuppression medications are what protect our transplanted kidney. So while the doses are reduced after the first year, year and a half, the doctors will maintain a particular dose lifelong, and that has to be taken. So till such time as some newer technology comes in where we are free of immunosuppressive medications, which is, could be a reality in future, but tab tak to lifelong lena hi hai. I had a Never question. to miss it. Yes, Sorry, Kamal. go ahead. Go ahead, Jay. No, I'm just telling Ishan never to miss it. I always keep an alarm in my phone. 7:30 to 7:30 alarm. Never miss it. First thing is take the medicines and then carry on with your life because they are our friends. They are our lifeline. Therefore, make sure that you don't miss them. Ishan's timing is 5 in the morning and 5 in the evening. My God. Because of his schooling actually we had to make that because school में जाता है तो वो उससे पहले खा नहीं सकता है ना तो मैम ने मतलब वो इम्यूनोसप्रेसिव का जो है उससे पहले 1 घंटा बाद में 1 घंटा कुछ खाना नहीं है Yeah. तो considering that we have kept it as a 5 o'clock and evening 5 o'clock. I had a That question. is why he's asking this. Yeah. Ishan, Sorry, Kamal. no. Yeah. Anand mentioned that Ishan has started swimming now. That's a question that piqued my interest because I love swimming. So, what precautions? I mean, generally, a lot of things are said about staying away from swimming pools and so on. So, after a kidney transplant, but is there something that you check? क्या कुछ आप चेक करते हैं पूल के बारे में कि मेंटेनेंस क्या होता है वगैरह वगैरह तो Definitely. कैसे स्विमिंग कर सकते हैं? Yes. Ishan, go ahead. Go ahead, Ishan. We only make sure that the pool is clean, and if the pool is not clean, then it's not clean on a specific day. Then my sir tells me then they don't come to swimming today. The pool has not been cleaned. Okay. That's very good to know, Ishan. Thank you so much. And you're a hero in your own right. Thank you so much for initial period, ma'am doesn't allow. We were asking Umali ma'am whether he can start his swimming back, but for around 2.5 years she didn't allow. But recently, from last 6 months, she said let's try this. Right. But make sure that the pool is clean. So we have checked a lot of pools in Thane, and we found one of good pool near Vartak Nagar, and he started there. Nice. And it is nice. And जब भी वो clean नहीं होता है उनको बताया है पूरा history ईशान का. अच्छा. The sir also takes good care of him. So he does a competitive swimming. Actually, he wants to do that, not just going for a swimming routine. Nahi, he want to do for a competitive swimming as well. So earlier he participated in triathlon, biathlon, and many state level or the district level competitions he has participated in. Lovely. I think we'll take the last question, Jaya, because I think we've gone way beyond our planned time. But one last question, which is how to apply for a kidney transfer. I'm assuming they mean how to apply for a kidney transplant. So if you could I know you already covered it, but मैं आपसे निवेदन करूंगा कि detailed answer आप इस webinar के recording से आप सुन सकते हैं. लेकिन Jaya, maybe in 30 seconds, if you could just summarize. Sure. So किडनी ट्रांसप्लांट जैसे कि मैंने मेरे टॉक में बताया था 2 ऑप्शन है. या तो फैमिली मेंबर्स अगर डोनेट करना चाहते हैं तो आप जहां पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो जो नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर में आपको करना है उसी हॉस्पिटल में आप
फैमिली मेंबर के साथ जाके डिस्कस करके 2 या 3 महीने में लिविंग डोनर जो फैमिली मेंबर से मिलना है किडनी वो मिल जाता है, 2-3 महीने में ट्रांसप्लांट हो सकता है। बट बाकी जो डिसीज्ड डोनर मतलब मृत्यु के बाद जो अंगदाता है उनसे अगर किडनी पाना है तो आपको फिर आपके डॉक्टर से ही बात करना है और वो गाइड करेंगे, आपको मदद करेंगे। उनकी टीम जो है वो आपको रजिस्टर करेंगे स्टेट के वेटिंग लिस्ट पे, और इस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। तो ये सारी चीजों के लिए आपको आपके डॉक्टर से ही बात करना है, वही आपको आगे का गाइड करेंगे कि कैसे रजिस्टर करना है, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है उसके लिए, सब हॉस्पिटल के थ्रू ही का है। Great. So thanks so much, Jaya. Thanks so much, Anant, and thanks so much, Ishan, for joining at the end. It was truly an honor to be conducting this along with Mohan Foundation. Thank you so much. Thanks so much to all the attendees who took time out on a Sunday morning. And I hope you found this webinar useful. We'll be doing such webinars probably every month, every 2 months. And we invite you to join us on this journey. Thank you so much. Thanks, everybody. Thank you. Thank you for so much, inviting. Kamal and Thank you so Nephroplus, much. for inviting us, working with us. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye. Thank you.